Friends, how are you? I Are am. you fine? Yes, sir. Yes, today is a very good day, and I think all of us will be better. Today's topic, that is mode of nutrition, which is already written on the blackboard just now. Yes, sir. And observe the blackboard. So mode of nutrition. Uh, Before that topic, we would like to discuss about the food. Why food is essential for us? Why do we take food? So food, no doubt, food is too much essential for getting of energy, for getting of energy. And all of us just know that energy is required to do any type of work. Even after we laugh, we talk, we walk, we cook, and so. For every work, energy is required. And for getting of energy, food is required. And also you know that food, from where we get it. There are two main sources of food from where we get it. First one plants and second one animal. So then after how does that food is being digested in our body? That is the most important factor to be known. So all of us should know about the process of digestion. So in that case, that is the mode of nutrition in humans. So there are some steps like ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion. So these 5 steps are there, all included to complete the digestion. So first of all, we will discuss one by one now. The first one, that is the ingestion. What does it mean, ingestion? To take food into our mouth, that process is called ingestion, in which just we take the food inside the mouth, then after we start to tear, to bite. Yes, of course, tear, bite, and etc. Then after इंजेक्शन, जैसे कि हम किस तरह से अपने भोजन को मुंह के अंदर डालेंगे, so that process is called the ingestion. In that case, just we take the food into our mouth, then after our teeth help us to tear, to bite, and to grind, and to chew. After completion of that process in the mouth, actually there are 3 pairs of saliva which are formed in our mouth. हम लोग के मुंह में जो है 3 पेयर जो होते हैं वो सलिवा का पाए जाते हैं, जिसमें सैलिवरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, इस सैलिवरी ग्लैंड में सलिवा सेक्रेट होता है. सलिवा इज वन ऑफ द एंजाइम व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, बट इट इज ओनली अप टू पार्शियल एक्सटेंट, अप टू सर्टेन एक्सटेंट ओनली. सो यू मे से लाइक दिस that digestion starts in our mouth. Digestion starts in our mouth. Then after the process of digestion. So what is digestion? Digestion actually, that is the process in which complex food is sent into simpler form. That is called digestion. So in that case, कहने का मतलब यह हुआ कि हम जो भोजन लेते हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बड़ा ही जटिल फॉर्म में होता है, और जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसके थ्रू ये सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है. या सो डाइजेशन में क्या होता है बच्चों, समझ में आ गया कि हम लोग जो भोजन लेते हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसी को हम लोग डाइजेशन करते हैं, उसी को हम लोग डाइजेशन करते हैं. अब फिर आते हैं कि व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब मींस टू शक, यानी कि शक करना, यानी कि शोषण को, यानी कि चूसना, या हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब करना. जब हम भोजन को पचा लेते हैं तो हमारा बॉडी यानी कि इसको एब्जॉर्ब करता है. सेल्स जो हमारे इंटरनल वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है वो इसे एब्जॉर्ब कर देता है. किसको? डाइजेस्टेड फूड. और डाइजेस्टेड फूड के बच्चों हम ये कह सकते हैं
जिसे हम सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो दैट ग्लूकोज इज लिक्विड फॉर्म। सो क्या होता है कि जो कि इसको हमारा इंटरनल वाल का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटरनल वाल होते हैं ना, इसका जो झिल्ली होते हैं, झिल्ली में जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर देता है डाइजेस्टेड को और उसको मिक्स कर देता है, ठीक है। देन आफ्टर ब्लड कैरीज ऑन द डाइजेस्टेड फूड इन द ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। यही ब्लड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमारे सारे सेल्स को पहुंचा देता है। तो दैट सेल्स तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स व्हाट, ऑलरेडी ग्लूकोज एब्जॉर्ब बाय ब्लड, ओके, कैरीड बाय ब्लड, देन आफ्टर इट इज सेंट टू each and every cells for further step, okay. So that is called assimilation. That is called Assimilation. So then after the last, when you already food is assimilated, then after last process, that is the ligation. That is the ligation. What does it mean, ligation? Ligation means waste product. Waste product which is in the form of solid, that comes to the rectum, from large intestine. देखो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब 100% भोजन पच जाता है तब उसके बाद ये आता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अगेन व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो पानी की मात्रा उसमें होती है, उसकी अगर आवश्यकता हमारे बॉडी को है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर जो ये वेस्ट मटेरियल जो बचे रहते हैं सॉलिड फॉर्म में, दैट इज सेंट टू द रेक्टम, इन द पार्ट ऑफ रेक्टम वेयर दैट इज स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। इसी को कहा जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो नहीं पचा, जो वेस्ट है, ये चले जाते हैं कहाँ पे, रेक्टम में, और रेक्टम में आकर के वो अपना स्टोर रहते हैं और टाइम टू टाइम व्हेनेवर वी नीड दैट इज एजैकुलेटेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस, so through anus it is already ejaculated. So this is the process of mode of nutrition in humans. Now second thing is that अब तक तो हम लोग समझ गए कि डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन किस तरह पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दिस न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, So alimentary canal starts from mouth and ends with anus. Starts from mouth, which is so known as the buccal cavity, and ends with anus. यानी ये mouth से स्टार्ट होता है और एनस तक जाकर के खत्म होता है। तो इसमें जो ऑर्गन्स है कौन कौन है भाई, तो buccal cavity. The buccal cavity already includes our mouth. Mouth is situated in buccal cavity. Where just we came to know about the process of ingestion, where partial food is digested by the action of salivary enzyme. So this is ingestion takes place in mouth. Then after this food comes to stomach through food pipe. What is food pipe? Food pipe, that means oesophagus. This food pipe is connected from mouth to stomach. Okay, it is formed in between mouth to stomach. So food is passed on to the stomach through food pipe. Whenever food comes to the stomach, there it will take at least 230 to 330 hours for the digestion of food. ये फूड को डाइजेशन के लिए हमारे स्टोमक में ये फूड लगभग 2.5 से 3.5 घंटा रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इन स्टोमक क्या होता है ना, स्टोमक में कुछ
गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, ठीक है। Start. स्टोमक की चर्चा हम कर रहे थे, तो स्टोमक में जब फूड आ जाता है ना, यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर तो डाइजेशन कैसे होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से और फिर स्टोमक के इंटरनल वॉल से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बीइंग रिलीज्ड बाय द इंटरनल वॉल ऑफ स्टोमक व्हिच मेक्स द फूड एसिडिक, and it is essential for food. When the food becomes acidic, then after digestive enzymes already become the active, then after start to digest the food in the stomach. So ultimately we can say that in the stomach, up to certain extent of food is already digested, but not completely. यानी स्टोमक में बहुत हद तक फूड का डाइजेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ 100% नहीं हो पाता है। तो फिर अब ये जो फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ कम्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टोमक। तो व्हाट हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, जिसमें पैंक्रियास से, लीवर से जो पैंक्रियाटिक जूस आते हैं, ठीक है, लीवर से सेक्रेट होकर के बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, तो ये सब आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को 100% उसको पचा देते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड 100% इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, समझ में आ रहा है? यस, ओके। तो ये जब 100% डाइजेस्टेड हो गया फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, then after it comes to large intestine. In large intestine, just going to large intestine, I have to say something regarding the small intestine. In small intestine, absorption of food takes place. That means what? इसमें क्या होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका इंटरनल वॉल होता है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर की ओर निकल जाता है, I mean to say finger like a structure which is called as the villi, which elongates to the food and then after absorb the food. That is mixed with blood. वहीं पर ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं villi में, और फिर यहाँ से ब्लड क्या करता है, सारे सेल्स को, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल्स को ये पहुँचा देता है डाइजेस्टेड फूड। Then after undigested food with excess of water, comes to large intestine. What happens in large intestine? Excess of water which is required by our body, that is again reabsorbed by internal wall of the intestine where villi is present. लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल वॉल के पर भी villi जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इलोंगेट होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को छोड़ देते हैं। दैट अनडाइजेस्टेड फूड नाउ कम्स टू रेक्टम वेयर दैट इज स्टोर। अब ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड चला आता है रेक्टम में, और रेक्टम में ये स्टोर रहता है। जब हमें लॉन्ग टाइम के लिए, व्हाट वी से लाइक लॉन्ग टाइम वी से लाइक दिस, when just we want to go to there, then after that is ejaculate through anus. Okay, so undigested food is completely ejaculated by anus. So this is the process of nutrition in human beings. क्या बच्चों समझ में आया? Yes, sir. Okay बच्चों, कोई परेशानी? No, sir. No problem. Okay, good, very good. Now I conclude our topic. Okay, let us see again by tomorrow. Okay, sir. Bye. Bye.